was the choosing a capital, उसको हमने study किया. After understanding choosing a capital in that traditional legacy we took upon, then temple building and features related we took upon. Now coming on to the next point. Last point जो हमने study किया था, the last point which we took related to the above was what was it? Actually, we were studying the sacred center, and when we were studying the sacred center, in that first point was choosing a capital. ठीक है, जिसमें कि हमने ट्रेडिशनल लेगेसी उनकी पढ़ी. उसमें हमने पता किया कि भाई actually as per moving towards the northern and the rocky terrain lands on the banks of the Tungabhadra river, the shelter was given by kingdoms or the shelter was given by the these hills to the monkey kingdoms of Vali and Sugriva as per the Ramayana. ये references. Second, ये भी माना जाता है, it is also an assumption of those times that Pampa Devi, the local assumed goddess of that particular empire, and Pinens in these hills. I had Pinens in these hills to marry the Virupaksha form of Shiva guardian deity by the king. Then after that fact check हमने लिया था उसका. Then temple building and features related, यानी कि encouraged by many rulers related to different dynasties. यानी कि the temple building was actually encouraged by many rulers related to different dynasties, such as in the form which we discussed just above. Pallavas भी थे, Chalukyas भी थे, Hoysalas भी थे, Cholas भी थे. Now next question comes into confront. Who associated themselves with the divine, therefore explicitly or implicitly identified with the deity of the temple? क्वेश्चन का सीधा मतलब ये निकल के आ रहा है कि ऐसे कौन लोग थे या कौन थे जो अपने आप को टेम्पल्स से एसोसिएट करते थे थ्रू द मीडियम ऑफ डिविनिटी, चाहे वो एक्सप्लिसिटली हो चाहे वो इम्प्लिसिटली. लेकिन वो मंदिर के अंदर जो देवी या देवता स्थान में रखे होते थे उनसे अपने आप को एसोसिएट करके दे यूज्ड टू ट्राई टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द डाइटी सिटिंग इनसाइड द टेम्पल. तो किस तरह के लोग होते थे और कौन इस तरह से एसोसिएट करते थे to identify themselves with the deity of the temple? Why? First most important thing was why. पहली बात, just because temples were actually at that point of time considered as the centers of learning, जिसकी वजह से temples consider भी किए जाते थे और temples act भी करते थे as the centers of learning. यानी कि मंदिर जो है सिर्फ जाकर वहां पर खड़े होके आप कह सकते हैं कि टाइम पास करने का माध्यम नहीं थे. यानी कि टेम्पल्स रियल में ऐसे सेंटर्स थे जहां पे लोग लर्न कर सकते, जहां पे लोग सीख सकते. यानी कि वहां पर ज्ञान, संत सभाएं ये सब लगाई जाती. सेकंड पॉइंट, लैंड्स ग्रांटेड बाय द रूलर्स एंड अदर्स फॉर देयर मेंटेनेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम. सेकंड थिंग, इस बात का ये सबूत भी है कि लोग अपने आप को डिविनिटी के मीडियम से टेम्पल के अंदर बैठे डाइटी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते थे. The second reference to prove this statement is that the lands which used to be granted by the rulers and other also rulers ही नहीं, other allied class के लोग भी lands grant करते थे for their maintenance from time to time. यानी कि आप समझ सकते हैं कि the rulers and the allied class belonging to the royal class used to grant lands from time to time so as to maintain, yes, so as to uh, give the cost for the maintenance for those temples from time to time. यानी कि मंदिरों की मेंटेनेंस के लिए, मंदिरों को आप बैलेंस बनाए रखने के लिए और मंदिरों के लगातार टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन के लिए from time to time the rulers and the allied class related to the rulers or the allied class related to the kingdom लगातार लैंड्स ग्रांट करते थे. यानी कि मंदिरों की जो परिधि थी वो कम नहीं, वो बढ़ती चली जाती. सवाल ये है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट? The rulers considered the above very important for winning support and recognition for attaining power, wealthy and piety. आप उससे कह सकते हैं, सर, what was the actual reason that you are telling that from time to time the rulers and others allied class belonging to the kingdom used to contribute their lands from time to time for the maintenance of such temples? What was the reason? सबसे important reason था that by doing this the rulers were in a will to win support. Second, were in a will to recognize for attaining more and more power. Third, were in a will to attain more and more wealth, and were in a will to be considered as more and more pious. यानी कि जनता के द्वारा उनको सपोर्ट जीतना, जनता के मीडियम से उनको पावर इंक्रीज करना अपनी,
साथ में खुद की वेल्थ बढ़ाना और अपने आप का पवित्र महिमा मंडन कराना ये उनके मेन टारगेट्स हैं। Hence developed as significant religious, cultural and economic centers. Thereby इतना इन्वेस्टमेंट अगर एक ही तरह के सेंटर्स पर पड़ेगा तो I think it was a multilateral investment being done on religious structures such as temple, due to which we can say that he, it was an irony that they were just a religious structure, but due to such interest being embedded या being glued for the sake of so many interests of the rulers, वो इतना इन्वेस्टमेंट कर देते थे इन स्ट्रक्चर्स पर that these structures not only developed as significant religious structures, but these structures or these temples also developed as significant religious as well as cultural as well as economic center. यानी कि ऑब्वियसली हर चीज का केंद्र बनने लगे, वो धार्मिक तो थे ही, सांस्कृतिक केंद्र भी बनने लगे और आर्थिक केंद्र भी बनने लगे। इतना इन्वेस्टमेंट वहां पर होता था कि अब एक तरीके से मंदिरों को हम इकोनॉमिक रिजर्व्स के रूप में देखने लग जाएं तो कोई खराब बात नहीं होगी। Next point, the rulers of Vijayanagar played to rule on behalf of the god Virupaksha. Second most important point ये भी था कि विजयनगर के जो रूलर्स थे वो अपने आप को वहां के जो लोकल मेल डाइटी थे, जिनको माना जाता था कि वो पंपा देवी के लवर थे या पंपा देवी के हस्बैंड थे, जिनके लिए पंपा देवी ने रॉकी टेरेन हिल्स के अंदर बैठकर तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद तब जाकर विरूपक्षा को पाया था। तो विजयनगर के जो रूलर्स थे वो ये मानते थे कि विरूपक्षा यानी कि शिव जी ने या शिव जी के उस स्वरूप जिनका नाम विरूपक्षा वो मानते हैं, उन्होंने उनको भेजा था अपनी तरफ से उस किंगडम में आकर उस किंगडम के लोगों के लिए कुछ करना। ये उनका मानना था कि वी आर हियर just on behalf of the god Virupaksha to do something good for the people related to Vijayanagar Empire. Source enough to choose Vijayanagar as a sit, as was related to the shrines of Pampa Devi and Virupaksha. अब सवाल आता है ये इंफॉर्मेशन हमें किस तरह से मिलती है, जो on the basis of which we can clear this statement that the rulers of Vijayanagar used to play, they used to consider that they have a play or they have a role to play on behalf of the god Virupaksha, so as to rule the people on behalf of the god Virupaksha. तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कुछ सोर्सेस से, ठीक है, एंड दो सोर्सेस आर रिलेटेड टू द श्राइन्स ऑफ पंपा देवी और विरूपाक्षा। ऑब्वियस उनके मठों से जुड़ी हुई सोर्सेज हैं जिनको स्टडी करके ये इंफॉर्मेशन ग्रैब या एक्सकेवेट की गई। कमिंग ऑन टू द फैक्ट चेक रिलेटेड टू इट, फर्स्ट पॉइंट, रॉयल ऑर्डर्स साइंड एज श्री विरूपक्षा कन्नड़ा स्क्रिप्ट। जितने भी रॉयल ऑर्डर्स विजयनगर एम्पायर में साइन होते थे, समझ रहे हैं आप, रॉयल ऑर्डर, लॉज, मैनुअल्स, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी रॉयल एग्रीमेंट्स, रॉयल कॉन्ट्रैक्ट्स, रॉयल मैनिफेस्टेशंस जो भी थे, जो बनते थे और जो साइन होते थे, उस साइन में क्या लिखा जाता था? रूलर अपना नाम नहीं लिखता था, बिकॉज मैंने आपको बताया था रूलर्स यूज्ड टू कंसीडर देमसेल्व्स एज द मीडियम सेंट बाय श्री विरूपक्षा टू रूल ओवर द पीपल ऑफ विजयनगर। देयरफॉर रूलर अपना नाम नहीं लिखता था, वो तो ये मानता था हम तो सिर्फ माध्यम भरे हैं विरूपक्षा जी का। इसलिए कोई भी रॉयल ऑर्डर जब साइन होता था तो उसपे साइन श्री विरूपक्षा नाम से होता था, और श्री विरूपक्षा भी इंग्लिश हिंदी में नहीं कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, यानी कि द रॉयल ऑर्डर यूज्ड टू बी साइंड एज श्री विरूपक्षा इन कन्नड़ लैंग्वेज और इन कन्नड़ स्क्रिप्ट टू बी रिटन। सेकंड पॉइंट, द रूलर्स यूज्ड द टाइटल हिंदू सुरत्रणा या हिंदू सुरात्रणा for them. Sanskritization of the Arabic term Sultan literally meant Hindu Sultan. Second most important thing is that अब आप ये कहेंगे सर रूलर तो इंग्लिश वर्ड हुआ और राजा भी सो कॉल्ड ऐसे उर्दू वर्ड है, तो आप तो हमें ये बताइए अकॉर्डिंग टू द प्योर संस्कृतिक वर्जन विजयनगर रूलर्स में या विजयनगर किंगडम में विजयनगर के रूलर्स को किस नाम से बुलाया जाता था, या किस नाम से उनकी विजयनगर किंगडम में पहचान थी, या किस नाम से उनकी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी या आइडेंटिटी एज व्हेन वाज एम्बेडेड इन विजयनगर एम्पायर थी। तो रूलर्स के लिए जो टाइटल था, जो वो अपने लिए टाइटल यूज कराते थे, क्योंकि वो तो विरूपक्षा का मीडियम मानते थे अपने आप को, तो द टाइटल विच द रूलर्स यूज टू गॉट टू बी यूज्ड अपॉन वाज हिंदू सुरात्रणा। और हिंदू सुरात्रणा का मतलब क्या होता है? हिंदू तो इसमें लगाया गया है, एक्चुअली सुरात्रणा मानो आप। सुरात्रणा एक्चुअली अरेबिक टर्म सुल्तान का संस्कृत वर्जन है।
तो आप समझ सकते हैं दैट हिंदू सुरात्रना मीन्स कन्वर्जन ऑफ सुल्तान इनटू सुरात्रना, एंड हिंदू उसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है, दैट्स व्हाई हिंदू प्लस सुरात्रना मीन्स हिंदू सुल्तान। अंडरस्टूड? ये मतलब था विजयनगर रूलर्स को संबोधित करने का। नेक्स्ट पॉइंट, द रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर वाज डिस्प्लेड ऑन द टेंपल। साथ में जो भी मंदिर था, चाहे वो एक था चाहे दो था, हर मंदिर पर जो रॉयल रूलर होता था उसकी स्कल्पचर पोर्ट्रेट की जाती थी। ऑब्वियसली बिकॉज दे वर यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज द मीडियम ऑफ विरूपाक्षा, therefore it was very clear that yes, this is the ruler, this is Hindu Sultan, yeah, this is Hindu Swatrana, if we clearly pronounce it according to the Sanskrit version of it, and he has to be clearly shown as a medium of Virupaksha, therefore उनकी royal portrait sculpt करके जो है मंदिर पर डिस्प्ले की जाती थी बड़े लेवल पर। The visit of the king to the temple was treated as an important state occasion accompanied by the nayakas of the empire. इसीलिए राजा साहब जब मंदिर में जाते थे अकेले या अपनी फैमिली के साथ, तो वो दिन एक त्योहार से कम नहीं माना जाता था, क्योंकि जनता की नजर में भी जो राजा महाराजा विजयनगर के होते थे, सो कॉल्ड हिंदू स्वराष्ट्रनाथ जो होते थे, वो उनकी नजर में वीरूपक्षा के बेटे टाइप ही होते थे या वीरूपक्षा के मैसेंजर ही होते। अंडरस्टूड? देयरफॉर व्हेन द किंग यूज्ड टू गो to visit to the temple alone or with his family, that day or that occasion was used to be treated as a very very important occasion for the whole state. ठीक है? और उनकी इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए उनको फॉलो कौन करते थे? जो उनको उनकी रैली को इतना भव्य और ग्लोरियस बना देते थे, they were actually accompanied by their military commanders which were termed as nayakas. And nayakas were what? Nayakas were the actual military commanders of the empire of Vijayanagar ruler. Now next point is Gopurams and Mandapas. बड़ा important point है। Gopurams and Mandapas पे हम आते हैं। First point is important terms related to temple architecture as a mark of the imperial authority during the empire best can be exemplified as. Now we should go across, we should come across some very important terms which are completely related to the temple architecture of those times. हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है जो उस वक्त के विजयनगर किंगडम में बने हुए टेंपल या एग्जीक्यूट किए जाने वाले या कैरी आउट किए जाने वाले टेंपल आर्किटेक्चर फॉर्म से जुड़े हैं, जो उस वक्त की इंपीरियल अथॉरिटी ऑफ विजयनगर किंगडम को बहुत ही इंपॉर्टेंटली सिग्निफाई करते थे ड्यूरिंग द एम्पायर, जिनके बेस्ट कैन बी एग्जाम्पलीफाइड, यानी कि बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। पहला, राया गोपुराम। राया प्रीफिक्स है तो इसका मतलब रायास के द्वारा बिल्डअप किए गए शायद। let's go into the theory. It will itself tell that what does it actually mean Raya Gopuram. तो ये राया गोपुराम से हम चलते हैं। What were these actually? First point, the royal gateways great in height signaled to the presence of the temple from a great distance. एक तरीके से सबसे पहला पॉइंट, जहां रॉयल सेंटर स्टार्ट होता था वहीं पे बड़े बड़े गेट होते थे जिनकी हाइट काफी ऊंची होती, और वहीं से ये क्लियर सिग्नल कर दिया जाता था कि टेंपल यहाँ है, यानी कि एक बड़े और दूर एक अच्छे खासे डिस्टेंस से सिग्निफाई किया जाता था फ्रॉम द रॉयल गेटवेज व्हिच वर एक्चुअली ग्रेटर इन हाइट्स दैट द टेंपल विल बी हियर, या द टेंपल इज हियर विद दिस डिस्टेंस एट दिस डिस्टेंस। सेकंड पॉइंट, दे वर ग्रेट रिमाइंडर्स ऑफ द पावर ऑफ द किंग्स टू यूज देयर रिसोर्सेज। तो एक्चुअली में इतने बड़े बड़े और इतने ऊंचे ऊंचे जिनको हम राया गोपुराम गेटवेज के रूप में कह रहे हैं, जिनका काम सिर्फ ये सिग्नलाइज करना था कि टेंपल का प्रेजेंस यहाँ से इतने डिस्टेंस पर है, फिर चाहे वो डिस्टेंस कितना भी हो। तो इन सेकंड पॉइंट वी आर कमिंग टू द पॉइंट दैट actually these Raya Gopurams were actually built by the royal kingdom rulers so as to give the reminder about their power, that with that power how their resources to be used by them. यानी कि सिंपल है, एक तरीके से ये गोपुराम्स अगर देखोगे आप तो इन गोपुराम्स को देखकर आपको रिमाइंडर पड़ जाएगा कि उस दौर के राजा कितने पावरफुल होते थे और कितने पावरफुल वे में वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइजली यूज करते थे विद ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक, विद बैलेंस टेक्निक। और इससे आपको ये भी अंदाजा लगेगा that how scrutinized and how crudely they were skilled in the construction of these gateways, कि कितनी बारीकी से इन ऊंचे ऊंचे और बड़े और चौड़े लंबे गेटों को बनाया गया था। अंडरस्टूड?
ये रहा है गोपुरम। सेकंड आ जाते हैं मंडपा। और आई थिंक इफ यू विल गो टू द साउथ यू कैन सी इन तंजौर और आई थिंक बृहदेश्वरा टेम्पल जो आज बने हुए हैं उनमें आप जाके देखोगे आपको गोपुराम की झलक मिलेगी। वहां पे गेट जहां स्टार्ट होते हैं वो किंगडम, वो गेट मंदिर से बहुत पहले स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे इंडिकेट हो जाता है कि अंदर मंदिर है। अंडरस्टूड? So I think these gates were actually to signify the aura of a temple. कि अब टेम्पल का ऑरा स्टार्ट हो गया है, therefore everything now after this gateway to the temple is of temple for the temple. सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं मंडपास। व्हाट वर मंडपास? Pavilions, long pillared corridor running around the shrines within the temple complex. ध्यान से सुनिएगा, टेम्पल कॉम्प्लेक्स मतलब मंदिर की परिधि। भाई मंदिर की परिधि तो गेट में से स्टार्ट हो या गेट के बाहर से स्टार्ट हो गई। तो वो पूरी की पूरी जो पवेलियन होती थी, जिसको हम मंदिर परिधि बोल सकते हैं, मंदिर परिसर बोल सकते हैं, ठीक है, द जोन ऑफ टेम्पल बोल लो सिंपल भाषा में, जहां पर लंबे लंबे पिलर होते थे और लंबी कॉरिडोर होती थी और बीच में क्या होते थे? श्राइन्स होते थे, चाहे वो किसी भी देवी या देवता के। यानी कि पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, बीच में श्राइन्स रिलेटेड टू द टेम्पल टू बी कंसीव्ड इन दोज इन दैट रेस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स, और आइट साइड उसके पवेलियंस होती थी या कॉरिडोर्स होती थी जहां पर लंबे लंबे पिलर खड़े होते थे। yes. जैसे अगर आप देखेंगे तो पुराने जमाने के हमारे मोहनजोदाड़ो में घर भी बनते थे इस तरह। नाउ यू कैन से दैट सर मंडपास के एग्जाम्पल बताइए आप। इस तरह के जो मंदिर आप बता रहे हो, चारों तरफ तो लंबे लंबे पिलर खड़े हैं और पिलर के अंदर जाकर गैलरीज बनी हुई है, पवेलियंस मान लीजिए, और बीच में एक आप कह सकते हैं कि स्टैंड बाय एरिया है और बीच में श्राइन सिचुएटेड। तो इसका पहला एग्जाम्पल है विरूपाक्षा टेम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है विट्ठला टेम्पल। विट्ठल टेम्पल आप जाके देख सकते हैं इफ यू वांट। आज भी है, भगवान से अच्छी बात है कि तोड़ नहीं पाए कोई। इन दैट वी विल टेक फर्स्ट रेफरेंस एज द विरूपाक्षा टेम्पल। Just a minute. Okay. Now first we will take the Virupaksha temple in reference. First point is built over centuries. विरूपक्षा टेम्पल कोई एक दिन की बनाई हुई मेहनत से निकला हुआ रिजल्ट नहीं है, या एक दिन की गई मेहनत से बना हुआ रिजल्ट नहीं। काफी शताब्दी लगी है इस मंदिर को बनने में, क्योंकि ये मंदिर फ्रॉम टाइम टू टाइम रेगुलरली अपडेट और अपग्रेड होता रहा बाय वन और द अदर रूलर रिलेटेड टू द किंगडम ऑफ विजयनगरा। Second point, earliest shrine 9th to 10th centuries inscriptions with the establishment of the Vijayanagar Empire. अब आप कहोगे सर ठीक है, ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन हमें ये भी समझ में आता है कि विरूपक्षा is actually the basic local male god on the basis of which the whole belief system of Vijayanagar Empire was based. मैं कहूँगा yes you are correct. तो आप कहोगे ठीक है सर, तो फिर आप हमें सबसे पहले तो ये बताइए विरूपक्षा टेम्पल का सबसे पहला मठ कब बना था? क्योंकि आप तो कह रहे हो दैट द कंस्ट्रक्शन वेंट ऑफ फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। तो सबसे पहला जो मठ या पहला जो श्राइन विरूपाक्षा टेम्पल का बना, वो बना 9th to 10th सेंचुरीज के बीच में। कहां से पता चलता है? सोर्स ऑफ एविडेंस इंस्क्रिप्शन, जो कि रिलेट करते हैं चीज को। यानी कि ये नियर बाय वही टाइम था जब विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट में आया। यानी कि व्हेन द विजयनगर एम्पायर actually was in its initial establishment, when it was actually initially established by the Turiel brothers, उसी वक्त पे विरूपक्षा मंदिर की नींव डाल दी गई थी और पहला मठ उसी वक्त पे बन गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे आ जाते हैं कि इस मंदिर में एक्चुअली क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, द हॉल फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन। जो इस पूरे मंदिर के अंदर मुख्य देवता है इस मंदिर, उसके सामने एक हॉल है बड़ा सा, बिल्ट बाय द कृष्ण देव राया। जिसको किसने बनवाया था? मेजर एंड बिगेस्ट राया डायनेस्टिकल रूलर कृष्ण देव राया। कंटेंट कार्व्ड पिलर्स। खास बात इस हॉल की क्या है? पिलर्स हैं, सीधे नहीं है, एंगल्स से कटिंग हो रखी है उन पिलर्स में। यानी कि मैथमेटिकली उन पिलर्स को बहुत डिजाइन तरीके से खड़ा किया गया है, एंड दैट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग ऑफ दिस विरूपाक्षा टेम्पल, जो हॉल के अंदर आपको पिलर्स मिले। सेकंड पॉइंट था ईस्टर्न गोपुरम। दूसरी बात आ जाते हैं, इस मंदिर के ईस्टर्न साइड में जो गेटवे खड़ा हुआ है, उसको भी किसने खड़ा किया था?
यानी कि उसको भी किसने बनवाया था, कृष्णदेवराय साहब ने। देन नोट में आ जाते हैं, द सेंट्रल श्राइन ऑक्यूपाइड अ स्मॉल प्लेस इन द कॉम्प्लेक्स। फिर नोट में आ जाते हैं कि बीच में बिल्कुल इस मंदिर के, क्योंकि भाई देखिए सेंट्रल श्राइन तो अलग होता था, तो मंदिर के बीचों बीच में जो सेंट्रल श्राइन है, यानी कि जो केंद्रीय मठ है जिसके इधर उधर पूरा मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स में एक छोटी सी जगह ही लेकर चलता है। वो तो ऑब्वियसली हर मंदिर के अंदर जो मुख्य देवता होते हैं वो एक छोटी सी जगह में स्प्लिट कर दिए जाते हैं, बाकी पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है, उसके इधर उधर गोपुरा बना, मतलब उसके इधर उधर आप हॉल बना दीजिए, ठीक है। तो सेंट्रल श्राइन यहाँ भी जो है एक छोटी सी प्लेस में ही सिचुएटेड था इन द होल टेम्पल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल इमेजेस आल्सो केप्ट इन द स्मॉल सेंट्रल श्राइन। साथ में वो जो मुख्य देवता स्थापित किए जाते थे, स्टैब्लिश किए जाते थे बीचों बीच पूरे मंदिर के कॉम्प्लेक्स के, उनके साथ छोटी छोटी और भी मूर्तियां, इमेजेस ऑफ सम अदर डाइटीज ऑफ अदर गॉड्स भी लगा दी जाती थी, स्थापित कर दी जाती थी, जिससे कि अलग अलग स्पेशल ओकेजन्स पर वो इमेजेस भी उस मंदिर के अंदर यूज की जा सके फॉर वन और द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्शिपिंग और रिचुअल मेथड टू बी कैरिड आउट। Now coming on to the next point, I think the last point, credit related to the hall. अब आप कहोगे सर आपने हमें जो अभी बताया विरूपक्षा टेम्पल के कुछ फीचर्स में, सबसे पहला फीचर आपने हॉल बताया था, सेकंड फीचर यू टॉक्ड अबाउट द ईस्टर्न गोपुरम विथ a talking note in which you told that the central shrine actually was occupying a small place in the complex with spatial images also attached to it, so as to keep that small central shrine with all those images to be used particularly on various simple occasions if they ought to be. मैं कहूँगा यस। तो आप कहोगे सर आप हमें ये हॉल के बारे में बताइए जो बिल्कुल मेन श्राइन के फ्रंट में आप बता रहे हैं, ठीक है, इसके फीचर्स बता दीजिए। तो आई थिंक पहली बार देख लेते हैं कि इनका काम क्या होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द बुक दे आर टेलिंग दैट दीज हॉल्स वर यूज्ड टू बी कैटेगराइज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस, यानी कि इन हॉल्स में कई पर्पसेस पूरे कर लिए जाते थे। फर्स्ट पॉइंट, टू विटनेस स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक, डांस, ड्रामा एक्सेट्रा ऑन डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स एज पर द थ्योरी ऑफ दैट फेस्टिवल। अलग अलग तरह के डांस परफॉर्मेंसेज इस हॉल इन हॉल्स में होते थे, म्यूजिक परफॉर्मेंसेज एंड ड्रामाज, ड्रामाज मतलब नाटक, नाट्य प्रस्तुतियां होती। सम फॉर द डायटीज टू स्विंग अपॉन, उनमें से कुछ परफॉर्मेंसेज सिंपली टू बी डिवोटेड टू द गॉड, टू द मेन श्राइन या टू द डायटी नेम्ड एज विरूपक्षा, या फिर और इमेजेस जो उस मंदिर में लगी है उनको ऑफरिंग्स देने के लिए कुछ परफॉर्मेंसेस होती थी। बाकी परफॉर्मेंसेस एंटरटेनमेंट या फॉर अम्यूजमेंट ऑफ द रूलर्स एंड जो भी है, but most of all 40-50% performances were used to be done in the devotion for the divinity related to the deities to sing upon. Last point for today, whereas others for celebrating the marriage of deities, जबकि ज्यादातर जो प्रोग्राम्स होते थे या ज्यादातर उन हॉल्स का जो यूज होता था नियर बाय 60-50-60-70% वो तब होता था जब कोई त्योहार आता था जिस त्योहार पर एक्चुअली डाइटीज की मैरिजेस को सेलिब्रेट किया जाता था, यानी कि पर्सनल कॉज के लिए मंदिर यूज नहीं करते थे। आजकल तो मंदिरों को धर्मशाला बना रखा है, आज तो छोड़िए, आज तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो बाकी जो 60-65% जो काम होते थे उन हॉल्स में वो रिलेटेड टू दोज ओकेजन्स थे जिन ओकेजन्स पर वन और दी अदर डे या वन और दी अदर मंथ या वन और दी अदर ओकेजन पर किन्हीं डायटीज की मैरिज को सेलिब्रेट किया जाए, लाइक शिव पार्वती की मैरिज को सेलिब्रेट करें या लाइक राम सीता की मैरिज को सेलिब्रेट करें, तो वो सब उसमें उन हॉल्स में वो सेलिब्रेशन बड़े लेवल पर होती थी। So this was Virupaksha temple. Tomorrow we will study about Vithala temple, and after understanding about Vithala temple, last topic will be plotting places, temples and bazaars, after which the chapter will be. So all the students are requested to come on